Hello everyone, welcome you all on your channel of Neat Study Corner. So as you all know that we have already started our fourth unit, that is electricity and magnetism. So today I thought that I should start another topic simultaneously with electricity and magnetism, and that is lasers. Why I choose this topic? Just because it is important and it is common in both the syllabuses of lecturer cater physics and master cater science as well. And recently we have seen a lot of questions from lasers in master cater 2020 as well, and in lecturer cater, previous lecturer cater as well. So if you see in the syllabus of master cater science, you'll see that there are a lot of topics regarding laser, like laser 3 level 4 level schemes, different kind of schemes, spontaneous and unstimulated emission, population inversion resonator, and helium neon laser, and ruby laser as well. So if you'll see the syllabus of master cater, lecturer cater, you'll also see lasers here, like optical pumping, population inversion, Einstein coefficients. Or if you'll see the syllabus of optics master cater 2020, there you will find Einstein coefficients. So it is quite common topic of both the syllabuses. So what I'm going to cover in this series is laser introduction, basic introduction, simultaneous and spontaneous emission and absorption, population inversion, Einstein coefficients A and B both, resonators and pumping schemes or types, helium neon laser and ruby laser, both gas laser and solids as an active medium laser. तो अभी तक तो यही प्लान है, लेकिन पढ़ाते समय अगर कोई और टॉपिक माइंड में आ गया तो वो भी कवर करवा देंगे साथ में. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू दैट you have subscribed to the channel, press the bell icon to get the notifications whenever I upload a new video. So let's start our today's topic, that is laser. So first of all, when you heard the word laser, so actually it is not a word, it is an abbreviation for light amplification by stimulated emission of radiation. मतलब amplify करना है light को stimulated emission of radiations के द्वारा, ठीक है. So first of all, a source which emits intense, almost perfectly monochromatic, directional, highly coherent beam of light. So ये तीन word, monochromatic, हाईली डायरेक्शनल और हाईली कोहरेंट, ये तीन वर्ड डिफाइन करते हैं लेज़र को. सो जो लेज़र का फिनोमिना है, ये इसकी एब्रीवेशन ही बता रही है दैट इट डिपेंड्स ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन. सो व्हाट डज स्टिमुलेटेड एमिशन मीन्स कि ये जो एमिशन हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद से नहीं हो रहा, इट इज़ स्टिमुलेटेड, मतलब किसी थर्ड प्रोसेस की वजह से ये जो एमिशन है और ये हो रहा है. सो इट वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड, यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रेडिक्टेड. मैंने ये नहीं बोला कि मतलब कब डेवलप कर दिया हमने लेज़र को. सबसे पहले जो प्रिडिक्ट किया था ये आइंस्टाइन ने किया था 1916 में. मतलब कुछ ऐसा हो सकता है लेज़र काइंड ऑफ थिंग, तो उन्होंने बता दिया था 1916 में. ये कब हुआ, कैसे, जैसे हमने पढ़ा था क्वार्क्स के केस में, कि क्वार्क्स के केस में पहले हिंट हो गया था कि कुछ ऐसा हो सकता है, उसके बाद मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स आए. तो सिमिलरली हियर आइंस्टाइन कंसिडर द इक्विलिब्रियम बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ ब्लैक बॉडी चैम्बर एट अ constant temperature, in which constant heat exchange, constant exchange हो रहा है एनर्जी का, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, takes place due to spontaneous emission of radiation. मतलब अपने आप जो एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, वो खुद ब खुद हो रहा है. एक चैम्बर, ब्लैक बॉडी चैम्बर लिया उन्होंने, और जो मतलब एक्सचेंज है एनर्जी का वो स्पॉन्टेनियस है. ही प्रेडिक्टेड दैट देयर मस्ट बी थर्ड प्रोसेस एज वेल. उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि यहाँ पे एक थर्ड प्रोसेस भी होगी और वो स्टिमुलेटेड होगी. और इट वॉज प्रेडिक्टेड, वही वर्ड बार बार आ रहा है कि प्रेडिक्शन हो गई थी 1916 में कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और अब्जॉर्प्शन के साथ साथ देयर मस्ट बी थर्ड प्रोसेस दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन. सो व्हेन ऑल ऑफ दिस बिकम प्रैक्टिकली प्रूवन, तो कब ये सब कुछ प्रूव हुआ. सो उसके बाद एक और टर्म है मेज़र. सो इसमें वहाँ पे लाइट था, यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन की बात हो रही है. तो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो 1954 में टाउन्स एंड गॉर्डन ने डेवलप कर दिया मेज़र बाय यूजिंग अमोनिया. तो अब प्रेडिक्शन 1916 में हुई थी, ठीक है. 1915 में वो चीज़ नहीं बनी, कुछ और बना, और वो उसी की मतलब प्रिंसिपल पे था, बट रीजन डिफरेंट था. जैसे यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन है, जो आइंस्टाइन थे उन्होंने विजिबल रीजन के लिए प्रेडिक्ट करा था. सो 1954 में सबसे पहले मेज़र की मतलब डेवलपमेंट हो गई. उसके बाद 1958 में उन्होंने मेज़र को विजिबल रीजन तक एक्सटेंड करने का
पॉसिबिलिटी दे दी कि हाँ एक्सटेंड हो सकता है। फिर 1916 में मेमन बिल्ड फर्स्ट लेज़र यूजिंग रूबी एज एक्टिव मीडियम, और ये सॉलिड एज एन एक्टिव मीडियम यूज़ हुआ इसमें। मतलब सॉलिड जो अगर पूछेंगे, कभी पूछ लिया कि ऐसा कौन सा लेज़र था जिसमें सॉलिड यूज़ हुआ था एज एन एक्टिव मीडियम, तो रूबी लेज़र आएगा। उसके बाद अगर पूछ लें कि गैस लेज़र कौन सी थी जो फर्स्ट डेवलप हुई थी, तो हीलियम नियॉन हुई थी। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन बना के अपने दिमाग में सोचो कि 1916 में प्रेडिक्शन हो गई, 1954 में मेज़र डेवलप हो गया लेज़र की तर्ज पे, और 1958 में उन्होंने मतलब बता दिया कि हाँ ये जो मतलब प्रिंसिपल है ये विजिबल रीजन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और 1960 में फाइनली मैंने फर्स्ट लेज़र बना दी, दैट इज़ रूबी लेज़र यूजिंग सॉलिड एज इट्स एक्टिव मीडियम। And then helium neon laser was constructed by Jevon after ruby laser. It was first gas laser. Okay, तो गैस लेज़र भी हो गई हमारी, सॉलिड लेज़र भी हो गई, जो एक्टिव मीडियम है, तो उनके बारे में पता चल गया। अब इंटरेक्शन जो हो रही है रेडिएशन की, रेडिएशन कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, तो वो कैसे हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो दैट एन एटॉमिक सिस्टम जो होता है उसे हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, बाय डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। सो हर मतलब एटॉमिक सिस्टम चाहे कोई भी, उसमें एनर्जी स्टेट्स होती हैं जो डिस्क्रीट होती हैं। डिस्क्रीट मतलब एक अलग अलग लेवल, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लेवल्स होते हैं, कॉन्टीन्यूस नहीं होती। और जो हमें यूजुअली पता है कि जो मतलब एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड नहीं होते, वो रेस्ट मतलब उनके पास कम से कम एनर्जी होती है, और उस कम से कम एनर्जी में वो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल रहना पसंद करते हैं विदाउट एनी एक्साइटेशन। जब तक उन्हें बाहर से कोई एक्साइटेशन नहीं मिलती, बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। तो here I am differentiating two processes by this line. First process is absorption of energy and second is emission of energy. तो जो हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट में हमारे एटम प्रेजेंट है, हम उनको एक्साइट करते हैं बाय नंबर ऑफ वेज। तो उसमें से एक प्रोसेस क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो हमारे एटम हैं वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। ये स्टिमुलेटेड है, हमने अपने इंटेंशन से प्रोवाइड करी है। ओके, उसके बाद ऑन द अदर हैंड जो एक्साइटेड एटम है, अब यहाँ पे दे विल टेंड टू लूज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज करके वापस ग्राउंड स्टेट पर आना चाहेंगे। तो क्या होता है, ऑन द अदर हैंड एन एक्साइटेड स्टेट एटम कैन ट्रांजिट टू द लोअर एनर्जी स्टेट थ्रू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एनर्जी स्टेट उन्होंने एक्वायर करी है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो मतलब छोड़ के वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे, और जो एनर्जी उन्होंने ली है वो लूज़ करेंगे। तो दिस एमिशन मे बी स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। तो यही प्रेडिक्ट करा था कि जो एमिशन होगा अब वो स्टिमुलेटेड भी हो सकता है और स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। जो पहली बात कर रही है मैंने, ये जो 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, इनमें जो अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है ये स्टिमुलेटेड है, मतलब हम इंटेंशनली दे रहे हैं उनको एनर्जी, तो वो एक्साइट होंगे। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। अब हमें पता है कि जो एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएंगे एटम, तो वो अगर तो कुछ टाइम के लिए, जैसे 10⁻⁻8 सेकेंड या फिर 10⁻³ सेकेंड वहाँ रुकेंगे। डिपेंड करता है वो स्टेट कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट जिसमें 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रहते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट है दैट इज 10⁻³ सेकेंड के लिए। मतलब दे आर टेंडिंग टू स्टे एट मेटास्टेबल स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम दैन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। तो अब मतलब जिस मर्जी स्टेट पर हों, एमिशन तो रेडिएशन की होगी, चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो या स्टिमुलेटेड हो। और यही 3 जो हमारे हैं पॉइंट्स बेसिस बनते हैं लेज़र का। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ थर्ड वन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो एमिशन होता है रेडिएशन का वो स्टिमुलेटेड होता है, अपने आप नहीं हो रहा, वो हम बाहर से कुछ ऐसा कर रहे हैं या स्टिमुलस कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो एमिशन कॉज कर रहा है। तो we'll study about these 3 processes and another topics as well in another video. So this is all for today. I hope you are enjoying and appreciating and liking my efforts to provide syllabus regarding topics to you, and do share these videos with all those people who are preparing for physics exam in which physics involved, or like master cadre, lecturer cadre, or any other competitive exam. And exam may be out soon, like master cadre exam or lecturer cadre, because
Lots of news are in air, and make sure that your preparation is on track so that you can crack your exam or can score good rank in exam. So this is all for today. Thank you very much.